پریز گاڈ۔ آج میں اپنے پروگرام کا آغاز ایک بڑی افسوسناک خبر سے کروں گا کہ وینسڈے کو میرے فادر ان لاء کو خداوند نے اپنے پاس بلا لیا، جو کہ ہم سب کے لیے یہ ایک بڑا لاس ہے، اور وہ خداوند میں سو گئے۔ اور تمام ویور سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ہم پچھلے پروگرام کو ہی فالو کریں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں میں نے خاندانی زندگی کے حوالے سے بات کی، اور بہت سارے لوگوں نے فون کر کے مجھے یہ کہا کہ ہم اس کو اور زیادہ ایکسپلین کریں، تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو خدا کے کلام کی روشنی میں معلوم ہو جائے کہ خاندانی زندگی، جو مسیحی خاندانی زندگی ہے، وہ ہم کیسے بسر کر سکتے ہیں۔ باقی میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی ساری سپورٹس کا، خاص کر پچھلے پروگرام میں ہمارے بھائی رشید حبیب نے ہمارے پروگرام کو سپانسر کیا، ہم ان کے لیے اگین شکر گزار ہیں۔ اور آج کا پروگرام جس بھائی نے اور بہن نے سپانسر کیا ہے، ہم ان کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اور انہوں نے خاص طور پر مجھے کہا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ مینشن نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بتانا نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند ان کو ضرور اس کے وسیلے سے برکت دے گا۔ باقی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گیٹ وے ٹی وی جو ہے وہ منڈے ٹو وینسڈے 7 سے 8 بجے تک کھل جاتا ہے، اور اس کو دیکھنا نہ بھولیے۔ اور تھرسڈے کو 6 سے 7، اور فرائیڈے کو 6:30 سے 7:30 بجے تک آپ ان پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں گیٹ وے ٹی وی کی وسادت سے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ سنڈے کو 12 سے 2 بجے تک لائیو سروس یہاں سے براڈ کاسٹ کی جاتی ہے اپنی اردو زبان میں گیٹ وے ٹی وی سے، تو آپ اس کو بھی دیکھنا نہ بھولیے۔ اور شام کو 7 سے 8 بجے تک پھر جو ہے یہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے، تو آپ ان پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے، اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہا کریں، تاکہ ہم پروگرامز کو اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے بات کریں گے۔ تھوڑا سا میں پریویسلی بتاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس بات کے بارے میں سیکھا تھا کہ جو عورت ہے گھر میں، وہ اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو بیوی ہے وہ شوہر کے لیے ہے، اور شوہر بیوی کے لیے ہے، دونوں کو خدا نے ایک بنایا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا بھید ہے، پولس رسول نے اس کو بائبل میں ایک بھید کے طور پر بیان کیا ہے، اور جو لوگ اس بھید کو جان لیتے ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ خداوند کے کلام کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں خداوند جو ہے وہ برکت دیتا ہے، اور ان کو خدا جو ہے اپنے کام کے لیے استعمال بھی کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے آزاد کیا، تو ان کو ایک زندگی کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ اگر ہم استثنا کی کتاب میں دیکھیں، اس کا 11واں باب اور اس کی 21، 22 اور 23 آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے، تمہارے اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خداوند نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی، کیونکہ اگر تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں جانفشانی سے مانو اور ان پر عمل کرو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس سے لپٹے رہو، تو خداوند ان سب قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا، اور تم ان قوموں پر جو تم سے بڑی زوراور ہیں قابض ہوگے۔ تو خداوند جو ہے وہ یہاں پر وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر جانفشانی سے عمل کرو گے، ان کو مانو گے، اگر میرے حکم جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہوں گے، تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوں،
اگر آپ میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں آپ کو برکت دوں گا۔ لیکن 1200 سال کے بعد ہم ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں کہ 1200 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملاکی کی کتاب میں خدا نے اس بات کا جائزہ لیا کہ آیا یہ قوم، آیا میرے لوگ جو ہیں وہ میرے حکموں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، کیا اس پر چل رہے ہیں، جو میں نے طور طریقے ان کو بتائے، جو زندگی کے بھید ان کے سامنے میں نے رکھے، کیا وہ ان پر عمل کر رہے ہیں، کیا ان کو چھوڑ گئے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملاکی دوسرا باب، ملاکی کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں کہ اس طرح لکھا ہے کہ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آؤ نالا اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہاری ہدیہ کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا، تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے۔ یہاں پر غور کرنا کہ پھر بھی لوگ خداوند سے سوال کرتے ہیں کہ سبب کیا ہے، کیوں ہماری دعائیں جو ہیں وہ سنی نہیں جاتی، سبب کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ خداوند جو ہے وہ سبب 14ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوہ بیوی ہے، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں۔ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو، پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے اس لیے کہ تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان خدا خود گواہ کے طور پر ہے، خدا جو ہے وہ ایک وٹنس کے طور پر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ بیوی کی تمام باتوں کو جانتا ہے، وہ ہسبینڈ اور شوہر جو ہے اس کی تمام باتوں کو جانتا ہے، خدا ان کے درمیان گواہ ہے۔ لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں خدا سے کہ سبب کیا ہے، کیوں ہماری دعائیں جو ہیں وہ خدا کے حضور نہیں پہنچتی؟ یہی سبب ہے، بے وفائی کا سبب ہے، ہم ایک دوسرے سے بے وفا ہیں، ہمارے اندر جو خداوند کی محبت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر جو ہمارے درمیان کی جو ایک دوسرے سے محبت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈینجر میں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند کا جو کلام ہے وہ ہمیں سبب جو ہے وہ بتا رہا ہے، ہمارے اوپر ظاہر کر رہا ہے کہ اسی لیے پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند خاص طور پر اعمال کا ذکر کرتا ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہم خدا کے حکموں کے مطابق نہیں کرتے۔ کیا خدا نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ کیا خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں طلاق سے بیزار ہوں؟ پھر کیوں جو ہیں وہ خاندان کے خاندان جو ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں؟ کیوں خاندان کے خاندان جو ہیں ان میں طلاق کا رواج قائم ہو گیا ہے؟ کیوں جو ہے وہ خاندانی زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ لوگ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آؤ نالا اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ تمہارے ہدیہ کو نہ دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو قبول کرے گا۔ پھر خدا کچھ بھی قبول نہیں کرتا، نہ آپ کی دعا کو سنتا ہے، نہ آپ کے ہدیہ کو قبول کرتا ہے، نہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرتا ہے، نہ کسی بھی طرح سے آپ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایسا خاندانوں میں ہو، کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے اگر ہم خداوند کو درمیان میں رکھیں، کیونکہ میاں بیوی جو ہے اس کے درمیان جو ہے وہ خدا اور اس کے حکم ہونے چاہیے تاکہ ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ مضبوط ہو۔ کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کی جو رفاقت ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے اندر جو پرابلم ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ اسی لیے ہے کیونکہ خدا کا کلام ان میں بسا ہوا نہیں، کیونکہ خدا کا کلام پڑھتے نہیں، خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم بات کر رہے ہیں خاندانی زندگی کے حوالے سے، جو پچھلے سرمن میں نے بتایا تھا اسی کو ہم آگے فالو اپ کر رہے ہیں
جس میں آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ ناکام شادی، ناکام شوہر، ناکام بیوی، ان باتوں پر ہم غور کرنے والے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سبب کیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں سبب کیا ہے، تو خداوند نے ملاکی کی کتاب میں 2 باب اس کے 13 سے 16 پڑھیں تو سبب بتا دیا ہے۔ سبب یہ ہے کہ آپ کے درمیان بے وفائی ہے اور خدا اس کا گواہ ہے۔ آپ لاکھوں چھپا لیں، شوہر بیوی سے چھپا سکتا ہے، بیوی شوہر سے چھپا سکتی ہے، ہم سوسائٹی سے چھپا سکتے ہیں، ہم اپنے فرینڈز ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں، لیکن چھپا ہم خدا سے نہیں سکتے۔ خدا سے ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اس کے سامنے تو ہماری زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، واعظ کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 9، 10، 11 اور 12 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اس میں اس طرح لکھا ہے، 1 سے 2 بہتر ہیں، 1 سے 2 بہتر ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ 1 سے 2 بہتر ہیں۔ خداوند نے پہلے انسان کو بنایا، پہلے آدم کو بنایا۔ خداوند نے پہلے آدم کو بنایا اور پھر خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ پھر خدا نے سوچا کہ آدم کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں، اور اس کے لیے خدا ایک مددگار جو ہے وہ بنا کر اس کے لیے لایا، اور اس نے ایک عورت کو بنایا، اس کی پسلی میں سے اس کو نکالا اور اس کے سامنے لایا، اور خدا نے آدم کے سامنے اس کو پیش کیا، اور آدم نے جب دیکھا تو اس کو بہت ہی یہ پسند آیا، اور خدا جو ہے اس نے یہ بنا کر، عورت بنا کر آدم کو دی مددگار کے طور پر۔ تو خداوند جانتا ہے کہ 1 سے 2 بہتر ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 4 باب اس کی 9ویں آیت میں، واعظ کی کتاب میں لکھا ہے 1 سے 2 بہتر ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھا لے گا۔ اگر وہ گریں، اگر ان کی ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم ہو جائے تو دوسرا جو ہے اس کی حفاظت کرے گا، اس کو اٹھائے گا۔ اگر ایک کو پرابلم ہو جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ ایک کو بخار چڑھ جائے تو دوسرا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے۔ اگر ایک کے پاؤں میں چوٹ لگ جاتی ہے تو دوسرا اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہے ہمارے گھرانوں میں؟ کیونکہ محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے، محبت کی جگہ جو ہے وہ تفرقے نے لے لی ہے، محبت کی جگہ جو ہے وہ جدائی آ گئی ہے، کیونکہ خدا کا کلام اور اس کی محبت ہم میں کام نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے اندر دنیاوی محبت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، اس لیے ایسا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب میں آپ سے خدا کا کلام شیئر کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر میں جو کالز ہیں وہ کھل جائیں گی، اور میں آپ کو وقت دوں گا کہ آپ اس میں تھوڑا بہت اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ہم کیسے خدا کے کلام کے مطابق اپنی لائف جو ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ تو خدا نے ایک کو بنایا، پھر خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، دوسری شخصیت کو پیدا کیا، یعنی عورت کو پیدا کیا، اس کو بنایا اور آدم کے پاس لایا، کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں 1 سے 2 بہتر ہیں۔ کیونکہ اگر وہ ایک گرتا ہے تو دوسرا اس کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے، جب وہ گرتا ہے تو کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے۔ پھر اگر 2 اکٹھے لیٹے تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ میرے عزیزو، ایک گر جاتا ہے دوسرا اس کی مدد کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر ایک پر کوئی شیطانی قوت غالب آتی ہے تو دوسرا اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک بیمار ہو جاتا ہے تو دوسرا دعا کرتا ہے۔ اگر بیوی بیمار ہو گئی تو ہسبینڈ دعا کرتا ہے، اگر ہسبینڈ بیمار ہو گیا تو بیوی دعا کرتی ہے۔ لیکن ایک خاص بات جو ہے وہ یہاں پر لکھی ہے، وہ یہ ہے، آخر میں لکھتا ہے، اور تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ بھائی یہ تیسرا کون ہے؟ پہلا ہسبینڈ، دوسرا اس کی بیوی، اب یہ تیسرا کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مسٹری یہاں پر بیان کی گئی ہے، ایک بھید یہاں پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ واعظ کی کتاب جو ہے یہ اس میں بہت بڑے بڑے پوشیدہ خزانے چھپے ہیں۔ تو یہاں پر وہ لکھتا ہے کہ تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی تیسرا جو درمیانی ہے وہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اگر ہسبینڈ اور بیوی کے درمیان میں خداوند یسوع مسیح کی محبت کام کرتی ہے تو میرے عزیزوں وہ جلد نہیں ٹوٹتے۔ تو ہم نے یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے درمیان یسوع کو انوائٹ کریں اور اپنی فیلوشپ
उसके साथ कायम करें। दोनों की फेलोशिप जो है वो मसीह के साथ होनी चाहिए, ताकि हम एक कामयाब जिंदगी जो है वो बसर कर सकें। लेकिन अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे नाकाम शादी को हम कामयाब शादी में बदल सकते हैं, कैसे हम नाकाम बीवी को कामयाब बीवी बना सकते हैं, कैसे हम नाकाम शौहर को एक कामयाब शौहर बना सकते हैं, क्योंकि ये सवाल हैं और हम इस पर गौर करेंगे। पहला ग्रंथियों उसका 11वां बाब अगर हम देखें तो उसमें बड़ी खास बात बयान की गई है। यहाँ पर इसके मुताबिक लिखा है कि इसके मुताबिक मर्द औरत का सर है। यहाँ पर यह बात बयान की गई है कि मर्द जो है वो औरत का सर है, और औरत जो है वो खुदावंद ने जब आदम को बनाकर दी तो उसके लिए कुछ असूल जो हैं वो बनाकर उसको दिए। तो यहाँ पर देखिए पहला ग्रंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 3री आयत से हम पढ़ते हैं। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। तो यहाँ पर गौर करें कि सर जो है वो अथॉरिटी को भी जाहिर करता है। यहाँ पर जरा सा गौर करने की बात है। लिखा है कि लूस रसूल ये कहता है कि मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ताकि आप जान जाएं कि मर्द का सर जो है वो मसीह है और औरत का सर जो है वो आदम है, उसका शौहर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बदन की मिसाल लेते हैं। अब मेरा बदन जो है इस पर ये मेरा सर है, यहाँ देखिए जो बीवी है वो बदन के तौर पर है और इसके ऊपर जो हस्बैंड है वो सर के तौर पर है। अब इस मिसाल पर थोड़ा सा हम गौर करते हैं और देखते हैं कि जो सर जो है इसको बदन संभालता है, इसको सहारा देता, गर्दन जो है वो इसको सहारा देती है, जो गर्दन के ऊपर जो है वो सर है। तो अगर गर्दन जो है ये कहे कि मैं सर को नहीं संभालूंगी तो फिर क्या होगा? फिर बदन में तफरका पड़ जाता है। तो इस तरह से काम नहीं बनता, इस तरह से फिर कामयाब जिंदगी जो है वो फेल हो जाती है। इस तरह जो है तफरके की वजह से जो हम कामयाबी के रास्ते पर जाना शुरू होते हैं, फिर हम वो नाकामी में बदल बैठते हैं। क्योंकि अगर गर्दन जो है वो बीवी जो है वो गर्दन के तौर पर है, वो सर को संभालती है, अगर वो इनकार कर जाए तो मेरे अजीजों गर्दन के बगैर जो है वो सर नहीं और सर के बगैर गर्दन नहीं। जब तक ये दोनों जुड़े रहते हैं तो पूरे बदन का जो फंक्शन है वो कंप्लीट रहता है और इसमें तफरका नहीं आता, इसमें कोई ऐसी बात नहीं आती। क्योंकि जो अगर ये नहीं हो सकता कि गर्दन और सर और बदन जुड़े हों और आप अपने आप को ही जख्मी कर रहे हों, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी खास वजह यह है कि आप फंक्शन में हैं। जब आप डिसफंक्शन होंगे तो फिर आप ऐसा करेंगे। ये खानदान की मिसाल है कि सर जो है वो हस्बैंड है, शौहर है, और जो बीवी है वो बदन के तौर पर है, और इन दोनों को इकट्ठे रहना है, इनमें इत्तेफाक होगा तो फिर जो है वो काम बनेगा। नाकाम शादी को हम कैसे कामयाब कर सकते हैं? क्योंकि मर्द सर के तौर पर है और औरत बदन यानी गर्दन के तौर पर है, और इन दोनों को आपस में एक रिश्ते में इस तरह से कायम रहना है जैसे गर्दन सर के साथ है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि बीवी जो है ये किस तरह से ऐसा कर सकती है। अभी तो लाइव कॉल्स जो हैं वो खुल चुकी हैं, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर फ़ोन मिलाइएगा और मेरे से बात करें। आप जो भी आपके जहन में है, जो भी आप चाहते हैं कि हम इस तरह से खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी कामयाब जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, तो आपके पास मौका है कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, ताकि हम बात को आगे बढ़ाते रहें। तो बीवी जो है उसके बारे में मिसाल की किताब में बड़ी वाज़ह तौर पर लिखा है। हालेलुया। लिखा है, आखिरी बाब है 31 बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मुजान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शौहर के दिल को उस पर इत्मीनान है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। हेलो। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। यहां पर नेकोकार बीवी को बयान किया गया है।
तो इस पर हम गौर कर रहे हैं। मेरे पास एक कॉलर है, पहले हमें कॉल ले लेते हैं। हेलो कॉलर। हेलो हेलो ब्रदर। गुड इवनिंग पास्टर, मैं यूनुस मसीह बात कर रहा हूँ न्यूपोर्ट से। हेलो ब्रदर यूनुस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज का कलाम बहुत बाइस बरकत और ईमान की तरक्की के लिए है प्रेज़ गॉड। और खानदानों के लिए है। मैं बहुत इससे हमें ब्लेसिंग मिली है। मेरे पास छोटी सी गवाही है खानदान के हवाले से जी प्लीज जल्दी से। और दूसरे बहन भाइयों के लिए। मैंने लास्ट ईयर से खुदा से प्रॉमिस किया कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा और स्मोकिंग छोड़ दूंगा। तो मैंने गिव अप की स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों। तो खुदा ने हमें खानदानी तौर पर बहुत बरकत दी और उस वक्त से हमारे खानदान में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने ये हमें फजल बख्शा। हम भी खुदावंद का आपके साथ मिलकर शुक्र अदा करते हैं जिसने आपको इस काबिल किया कि आप नशा करना छोड़ें और अपनी खानदानी ज़िंदगी को कामयाब करें। तो नाज़रीन, आप ये सुन रहे हैं भाई की गवाही को, भाई यूनुस की गवाही को आपने सुना कि किस तरह उन्होंने सिगरेट पीना और ड्रिंक करना छोड़ दी और उनकी ज़िंदगी जो है वो कामयाब हुई। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेकुकार बीवी के हवाले से। अभी हम बीवी पर बात कर रहे हैं कि वो क्या करती है, वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में अपने हस्बैंड से नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। फिर लिखा है कि वो खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। देखिए बीवी जो है वो घर में खुशी से रहती है, खुशी से अपने घर में काम करती है। हालेलुया। और वो फिर आगे लिखा है 14वीं आयत की 15वीं आयत में लिखा है वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है। वो घराने की फिक्र करती है, उसको घराने की फिक्र है। वो जानती है कि मेरा घराना है, वो जानती है कि मेरा शोहर है, वो जानती है कि मुझे काम करना है। और ये नेकुकार बीवी की पहचान है। फिर हम पढ़ते हैं कि वो अपनी लोनियों को काम देती है और किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है। हालेलुया। तो ये पूरा जो बाब है 31 बाब, उसकी 10वीं आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो बीवी के हवाले से मिलेंगी कि अगर बीवी ऐसी हो, अगर बीवी इस तरह की हो तो उसके शोहर की इज्जत माशरे में होती है। अगर बीवी इस तरह हो तो उसका शोहर जो है वो उस पर खुश होता है, उसके शोहर को उस पर अतमाद है, उसका शोहर जो है उसकी तारीफ करता है। और मेरे अजीजों, अगर बीवी इस तरह की नहीं तो फिर ना इतमाद रहेगा, ना वो उसकी तारीफ करेगा। तो इस तरह से जो खानदान है उसमें बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाती है। एक और बात हम देखते हैं कि अब हम एक्चुअली मर्द की बात करते हैं। औरतों की तो हमने बहुत सारी बातें की क्योंकि ये ऐसा हॉट टॉपिक है। मुझे पता है कि लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफेंड भी हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं हम उन्हीं पर बात करें कि किस तरह से हम अपनी खानदानी ज़िंदगी जो है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक मैं मिसाल से शुरू करता हूँ, इससे पहले कि मैं मर्दों की बात करूँ, कि किसी पादरी ने दूसरे पादरी से पूछा कि वो दूसरा पादरी जो शख्सी तौर पर कैसा है। तो पादरी साहब ने जवाब दिया कि क्योंकि अभी मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी तक मैं उसकी बीवी से नहीं मिला। अब देखिए कि बीवी जो है उसको मिलने से खानदान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि ये मिशनरी, ये पादरी जानता है कि जब मैं बीवी को मिलूंगा तो फिर मुझे असल में ये पता चलेगा कि इसकी बीवी से, जो कि बीवी हस्बैंड या शोहर का जलाल है, उससे मनक्स हो रहा है या नहीं, तो फिर से ही मालूम होगा। क्योंकि बीवी मर्द का जलाल है। निकालें क्रंथियों 11 बाब उसकी 7वीं आयत जो है उस पर हम गौर करते हैं। पहला क्रंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत जो है, 11वां बाब उसकी 7वीं आयत पर हम देखते हैं। लेकिन अलबत्ता मर्द को अपना सर डांटना ना चाहिए क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर मर्द का जलाल औरत, जहां में लिखा है मगर औरत मर्द का जलाल है। औरत क्या है जी? मर्द का जलाल है। जब हम औरत को देखते हैं, जब हम बीवी को देखते हैं तो उससे शोहर के बारे में बहुत कुछ मालूम हो जाता है।
हमारे पास एक कॉलर है, पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो कॉलर। हेलो ब्रदर। हेलो हेलो जी बहन। हाँ जी, मैं राबी बोल रही हूँ। हाँ जी भाई, कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल खैर से। आप सुनाएं, आप कैसी हैं बहन, और आज के प्रोग्राम के बारे में आज आप क्या प्रोग्राम कहना चाहती बहुत हैं? पावरफुल है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इनसे, आपके प्रोग्राम से बरकत पानी चाहिए और Praise बड़े God. गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि ये माने रखता है। बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल मैसेज है कि अप विद द गुड वर्क ऑफ द लॉर्ड। एंड बहुत अफसोस हुआ आपके ससुर जी का। तो बिल्कुल, ये खुदा गॉड की ब्लेस मर्जी यू है, खुदा का प्लान एंड है। आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू, बाय। गॉड ब्लेस यू, बाय। जी, तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि खुदा के कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है, मगर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अगर औरत के बारे में इस तरह से लिखा है कि 7वीं आयत में पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना चाहिए क्योंकि वो खुदा की सूरत उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। औरत क्या है जी? मर्द का जलाल है। ये बात यहाँ पर लिखी है 7वीं आयत में। पहला ग्रंथियों उसका 11वां बाब उसकी 7वीं आयत के आखिरी हिस्से में लिखी है कि औरत मर्द का जलाल है। अब हम इसको किस तरह से समझेंगे कि देखें, सूरज जो है उसका एक अपना जलाल है, सितारों का अपना जलाल है। तो जलाल जो है वो सूरज से मुनक्स होता है। अब हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि जो जलाल, जो रोशनी, जो नूर जो है वो सूरज से चांद पर पड़ता है तो उससे पता चल जाता है कि सूरज कैसा है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, अगर आपने घराने का मालूम करना हो तो औरत से पता चल जाता है, बीवी से पता चल जाता है कि मर्द का जलाल कैसा होगा। क्योंकि अगर बीवी घर में परेशान है, अगर बीवी जो है वो घर में रोती रहती है, अगर बीवी जो है उसको घर में प्रॉब्लम ने घेरा हुआ है, तो इससे मालूम ये होता है कि जिसका वो जलाल है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरे तौर पर नहीं निभा रहा, क्योंकि उसका जलाल जैसा है वो आगे दिखता है। क्योंकि हस्बैंड जो है, जैसा हस्बैंड होगा उसी तरह जो बीवी की जो शक्ल से हम पता लगा लेते हैं कि किस तरह उसका जलाल जो है वो उससे मुनक्स हो रहा है। तो मेरे अजीजों, अगर बीवी खुश है, सुकून में है और पूरा तमाद है और उसका शोहर जिसका वो जलाल है इज्जत पाता है। अगर बीवी सुकून में नहीं, अगर बीवी जो है वो अतमाद में नहीं, अगर बीवी खुश नहीं, अगर बीवी परेशानी में है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो हस्बैंड है उसका जलाल जो है या उसकी जो रोशनी है वो बुझी हुई है, वो बिल्कुल चिराग की तरह काम नहीं करता। क्योंकि घर में अगर बीवी मायूस है, परेशान है, तो नतीजा ये हुआ कि वो शौहर जो है वो नाकाम शौहर है। वो शौहर जो है अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता। वो शौहर जो है वो अपने घराने के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके बच्चे परेशान हैं, उसके घर में परेशानी है, और ये निशानी है उस शौहर की जिसका जलाल उस बीवी से नजर आ रहा है, उस घर से नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये निशान है उस नाकाम शौहर का। लेकिन कामयाब शौहर का जो निशान है वो ये है कि बीवी जो है वो घर में खुश है, बीवी जो है, बच्चे जो हैं वो घर में खुश हैं, रिश्तेदार जो हैं वो खुश हैं, घर में खुशियां ही खुशियां हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसका जलाल जो है वो बेटर है, उसका बंदोबस्त जो है वो बेटर है। हस्बैंड जो है वो जिम्मेदारी को निभा रहा है। अगर वो जिम्मेदारी पूरा नहीं करता तो मेरे अजीजों बड़ी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं सूरज और चांद की मैंने आपको एग्जांपल दी। सूरज जो है वो शौहर है और चांद जो है वो बीवी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि देखें कैसे चांद जैसा चेहरा। तो बीवी की आप तारीफ किया करें, लेकिन बीवियां जो हैं जब हस्बैंड जो है उनकी तारीफ करते हैं तो मेरे अजीजों उनको तारीफ करने देना चाहिए। क्योंकि हम अपने मुआशरे की बात करते हैं, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसे भी करूंगा जो बाइबल में तो नहीं लिखी लेकिन आम रोजमर्रा की जिंदगी में का हिस्सा है। वो जिस तरह से, जैसे अगर हस्बैंड जो है फूल लेके आया बीवी के लिए तो बीवी मुस्कुरा कर पूछते आज आप क्या करके आए हैं। इस तरह की एटीट्यूड से हम उसका जो जज्बात है उसको
बिल्कुल मजबूर कर बैठते हैं, उसके जज्बात को मार देते हैं। इजहार करने दें। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत है तो दोनों को इजहार करना चाहिए, क्योंकि ये खुदावंद की मर्जी है, खुदावंद ऐसा चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता मेरे अजीजों? अगर शोहर सूरज की मानंद है और उसका जलाल जो है मर्द का जलाल औरत है, तो प्रॉब्लम कब आएगी? जब अगर सूरज और चांद के दरमियान कोई चीज आ जाए तो क्या होगा? सूरज और चांद के दरमियान अगर कोई चीज आ जाती है तो क्या होगा? डार्कनेस छा जाएगी बीवी के चेहरे पर, खानदान के चेहरे पर, चूंकि उसका जलाल जो है, रोशनी जो है, वो जो काम, जो जिम्मेदारियां हैं वो रुक जाती हैं, वो खानदान पर नहीं आती। तो इस तरह से खानदान में डार्कनेस आ जाती है, खानदान तरक्की नहीं पाता, बीवी अफसुर्दा रहना शुरू हो जाती है, खानदान अफसुर्दा रहना शुरू हो जाता है, रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो जाती है, उनके दरमियान में कुछ चीज आ गई तो बस मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो डेंजरस में पड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर वाज की किताब को पढ़ें, उसका हम पढ़ रहे थे वाज की किताब में, हमने जब पढ़ा कि उसमें लिखा है कि तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। अगर दरमियान में नूरों का बाब है, अगर मियाँ और बीवी के दरमियान नूरों का बाब खुदावंद यीशु मसीह है तो दोनों रोशन रहेंगे, दोनों को उसकी रोशनी से रोशनी पहुंचेगी। अगर उनके दरमियान कोई शैतानी कुव्वत है, अगर कोई शैतानी शख्सियात है, अगर उनके दरमियान शैतान ने काम करना शुरू कर दिया तो मेरे अजीजों वो बुझ जाते हैं, वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, खानदान टूट जाते हैं, खानदान जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी कामयाबी के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम अपना दरमियानी यीशु मसीह को रखें, उसकी तालीम पर अमल करें। जब तक हम उसकी तालीम पर चलते रहेंगे, जब तक हम उसको अपना दरमियानी मानेंगे, जब तक हम उसके कानून और कायदों पर चलते रहेंगे और दुआ करेंगे तो आसमान से हमारी दुआओं का जवाब आएगा। लेकिन जब हम इस तरह से दुआ नहीं करते, जब हमारे दरमियान प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो मेरे अजीजों, अभी हमारे पास एक कॉलर है, हम कॉल ले लेते हैं। हेलो कॉलर, हेलो हेलो कॉलर। मेरा ख्याल है लाइन जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, मुझे चल अभी तक आवाज़ आ रही है लेकिन ना उनकी आवाज़ मेरे तक शायद नहीं पहुंच रही। तो अगर आप रख कर दोबारा ट्राई करें तो आप मेरे से बात कर सकेंगे। तो हम ये जानते हैं कि शौहर और बीवी की हम बात कर रहे हैं, नाकाम शादी, नाकाम शौहर, नाकाम बीवी। अगर बीवी जो है वो अपने खानदान को खुश नहीं कर सकती तो वो नाकाम बीवी है। हमारे पास एक कॉलर है, हम उसकी कॉल लेते हैं। हेलो कॉलर। हेलो, गुड इवनिंग भाई साहब, शमीम बोल रहा हूँ न्यूपोर्ट से। गुड इवनिंग ब्रदर जी, कैसे हैं आप? और आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आज का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा है। खास करके ये मुझे मिसाल बड़ी अच्छी लगी है जो आप कह रहे थे कि आदमी जो है वो एक सूरज की तरह है और उसके बीवी जो है वो चांद की तरह है, और एक दूसरे अगर उनके दरमियान में अगर कोई चीज आ जाती है तो अंधेरा हो जाता है, यानी कि ग्रहण लग जाता है। बिल्कुल ग्रहण लग जाता है। तो ग्रहण तो हमें अच्छा नहीं लगता जी हाँ। तो ग्रहण जो जब आ जाता है तो फिर अंधेरा आ जाता है जी। तो अंधेरा जो है वो हमें अच्छा नहीं लगता, खास करके खानदानी मसीही खानदान में अंधेरा जो है वो अच्छा नहीं है। हमें एक दूसरे को शफाफ होके देखना है। तो मेरा ये दावा है कि आज के आपके इस कलाम से बहुत सारे लोगों को बरकत मिली है। प्रेज़ गॉड। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। और मैं चाहता हूं कि जो लोग वॉच कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो ज़रूर फ़ोन करके अपनी राय का इजहार करें, हमें बताएं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से खुदावंद काम कर रहा है। हमारे पास एक और कॉलर है, हम कॉल लेते हैं। हेलो कॉलर। हेलो जी, हम प्रोग्राम को जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं बात कर रहा था कि जब सूरज और चांद के दरमियान हस्बैंड और शौहर जो है उसकी बीवी, उसके दरमियान
कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई भी ऐसी बात आ जाती है तो उनकी जिंदगी में डार्कनेस आना शुरू हो जाती है, अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। जब अंधेरा छाना शुरू हो जाता है तो अंधेरे में क्या होता है? हम जानते हैं कि जो मसीही लोग हैं उनको खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहा गया है कि हम नूर के फर्जंद हैं। हालेलुया, हम क्या हैं? नूर के फर्जंद हैं। लेकिन तारीकी में क्या होता है? तारीकी में शैतानी कुव्वतें काम करती हैं। हमारे पास एक कॉलर है, हम कॉल ले लेते हैं। हेलो कॉलर। Hello, हेलो, this is Gloria speaking. हाय ग्लोरिया। I'm bringing up a prayer for my throat, please. So I you get want me to pray stressed for as you? well. Hello? Hello, you want me to pray for you? I'm bringing up for my throat. It's dry and sore, and I lose my breath I due see. to anxiety and stress. Okay, Yeah, and it's been going on for a long time. okay. Can you put your phone down? I will pray for you, okay? Yeah. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus. Lord, you know our sister by heart. In the name of Jesus, Lord, I rebuke this short breath. I rebuke this disease in the name of Jesus. Lord, send your Holy Spirit right now and cleanse her lungs right now in the name of Jesus. Lord, we believe that you have it done. In the name of Jesus, Lord, we ask. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you very much, बहन। तो मैं बात कर रहा हूँ डार्कनेस की। If you have any problem between husband and wife and उनके दरमियान अगर कोई भी ऐसी चीज आ जाती है तो उसमें डार्कनेस आ जाती है दोनों की रिलेशनशिप में। जब डार्कनेस आ जाती है तो अंधेरे में जो काम होते हैं, मेरे अजीजों, मेरे से ज्यादा शायद आपको मालूम होगा कि अंधेरे के क्या क्या काम हैं। क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम तो रोशनी के फर्जंद हैं, नूर के फर्जंद हैं। जब तक हम अंधेरे से निकलकर रोशनी में रहेंगे सब बातें खुली होंगी, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खुशी और इत्मीनान होगा। लेकिन जब जिंदगी में अंधेरा छा गया तो दोनों की रिलेशनशिप ब्रेक हो गई तो फिर अंधेरे में खौफ आने लगता है। पहली बात, लोगों को खौफ आता है। हमारे पास एक और कॉलर है, हम कॉल लेते हैं। हेलो कॉलर। Hello. हेलो Hello, भाई साहब जी। जी, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ स्पीच बहुत अच्छी है, थैंक यू, ਦਿਲ थैंक ਨੂੰ यू ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਬੈਠਾ ਦਾ। मैं प्रेज द लॉर्ड, थैंक ਖੁਦਾ यू वेरी ਤੁਹਾਨੂੰ मच। ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਬਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ। गॉड ਥੈਂਕ ब्लेस ਯੂ यू। ਵੈਰੀ ਮਚ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू जी, थैंक यू। बाय। गॉड ब्लेस यू। तो जब हम ये देखते हैं कि जब मियाँ और बीवी के तल्लुकात खराब हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है तो फिर क्या होता है? खौफ पैदा होता है। तो अंधेरे में पहली बात खौफ आता है। एक और हमारे पास कॉलर है, हम कॉल लेते हैं। हेलो कॉलर। हेलो हेलो कॉलर। मेरे पास मैं कह कॉल जो है ड्रॉप हो गई है। हेलो, कभी आवाज़ आती है कभी जाती है, तो मेरा ख्याल अगर आप फ़ोन रख कर दोबारा करें तो फिर मैं आपसे बात कर सकूंगा। तो पहली बात हम देखते हैं कि खौफ आने लगता है। देखें, अब ये है कि जब बीवी जो है वो खौफजदा हो जाती है, बच्चे खौफजदा हो जाते हैं और बहुत सारी बातें और जन्म ले लेती हैं, क्योंकि खौफ जो है ज़िंदगी में बहुत भयानक काम करता है। तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें आगे चलने की ज़रूरत है। हम अपनी ज़िंदगी में, मैं अब इसको, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, मैं ये चाहता हूँ कि आप खुदा का कलाम पढ़ा करें, अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें, और हस्बैंड अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करे, बीवी जब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, और बच्चों को साथ लेकर बैठे बाइबल पढ़ा करें, खुदा का कलाम पढ़ें, उनको खुदा के कलाम के बारे में बताएं, ताकि हमारी ज़िंदगी में अंधेरा ना छा जाए, ताकि जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमारे बीवी बच्चों को देखें तो पता चले कि ये कामयाब शौहर है। और जब हस्बैंड जो है, शौहर बाहर निकलता है तो उसकी मुआशरे में इज्जत होती है, उसको पता चलता है कि ये कामयाब बीवी का शौहर है। हालेलुया।
تو ہم مل کر اپنے خاندان کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اگلے فرائیڈے کو تو نہیں بلکہ اس سے اگلے فرائیڈے کو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تو ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے رہیں گے، آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ و بائے بائے کہوں گا۔